question number 4. Write this measurement in columns and subtract. जिस तरह से हमने यहाँ पे एडिशन किया, सेम एज हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, सो देर इज अ क्वेश्चन नंबर 1. 12 m, m means meter and cm is equal to centimeter. Okay, so 12 meter and 14 centimeter from 13 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर. हमें 13 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर में से 12 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे 2 पार्टीशंस है, मीटर एंड सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे मीटर एंड सेंटीमीटर. ग्रेटर यूनिट पहले आएगा एंड स्मॉलर यूनिट आफ्टर दैट. ओके, सो यहाँ पे 2 पार्टीशंस. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास है 12 मीटर एंड 13 मीटर, बट हमें यहाँ पे 13 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है. एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज ग्रेटर नंबर पहले आएगा एंड स्मॉलर नंबर उसके बाद. ओके, सो देयर इज अ 13 meter and 12 meter. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे 14 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर है, बट हमें यहाँ पे 32 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो 32 एंड 14 ये हमारे सेंटीमीटर्स हैं. ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सब्ट्रैक्शन. ओके, सो first of all left hand side 2 minus 4. so 2 minus 4 हम यहाँ पे नहीं कर सकते because of 2 is a smaller number and 4 is a greater number. so हमें यहाँ पे numbers को borrow करना पड़ेगा. so 3 become 2 and 2 become 12. okay, so now 12 minus 4. so 12 minus 4 is equal to 8. After that 2 minus 1. so 2 minus 1 is equal to 1. After that 3 minus 2. 3 minus 2 is equal to 1. बट आप यहाँ पे देख सकते हो there is a 13 and there is a 12. so आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो there is a 1. 13 minus 12 is equal to 1. so there is a 1. okay, so answer is 1 meter and 18 centimeter. Got it? so is that your answer? okay, after that question number B. so question number B you have to do in your homework. okay, and let's start the question number C. so there is a 57 meter 97 centimeter from 85 meter and 23 centimeter. okay, so let's start. okay, so there is a question number C. so also there is a meter and centimeter, 2 partitions. so first of all meter and centimeter and 2 partition. okay, so हमारे पास नंबर है यहाँ पे 57 मीटर एंड 85 मीटर. ओके, सो हमें यहाँ पे 85 मीटर में से 57 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 85 मीटर and 57 meter and after that 97 centimeter and 23 centimeter. so हमें यहाँ पे 23 में से 97 को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो 23 and 97. ओके, और यहाँ पे हमारी सब्ट्रैक्शन की साइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 minus 7. so we cannot subtract, so we have to borrow the number from neighbor. okay, so यहाँ पे 2 है हमारा neighbor, so there is a 1 and 3 become 13. okay, so 13 minus 7. so 13 minus 7 is equal to 6. so there is a 6. okay, now there is a 1 and there is a 9. so 1 minus 9 we cannot subtract, so we again get the borrow from neighbor.
So 5 become 4 and 1 become 11. Okay. So now 11 minus 9. 11 minus 9 is equal to 2. Okay. So there is a 26 centimeter. Okay. And there is a 4 and there is a 7. So 4 minus 7 we cannot subtract. Okay. So we have to again borrow the number from neighbor. So 8 becomes 7 and 4 become 14. Okay. So now 14 minus 7. 14 minus 7. So 14 minus 7 is equal to 7. So there is a 7. Now 7 minus 5. 7 minus 5 is equal to 2. So there is a 2. So 27 meter and 26 centimeter. Okay. Okay. After that, question number D you have to do in your homework. Okay. Now question number E. 3 kilometers 871 meter from 11 kilometer and 612 meter. Okay. So let's start. Okay. Okay. So question number E, we have a two partition, kilometer and meter. So there is a first of all kilometer and meter. We have a two partition. Okay. So 3 kilometers and 11 kilometers. So we have to subtract 11 minus 3. Okay. 11 kilometers and there is a 3 kilometers. After that there is a 612 minus 871. Okay, and there is a subtraction sign. Okay, so let's subtract the numbers. First of all, 2 minus 1. So 2 minus 1 is equal to 1. After that 1 minus 7. So 1 minus 7 we cannot subtract, so we have to borrow the number. So 6 become 5 and 1 become 11. Okay. So 11 minus 7 is equal to 4. After that 5 minus 8. We cannot subtract 5 minus 8. So we have to again get the borrow. So 1 becomes 0 and 5 become 15. So 15 minus 8. So 15 minus 8 is equal to 7. So there is a 7. After that there is a 0 and there is a 3. So we cannot subtract 0 minus 3. So we have to again borrow the number from neighbor. Okay. So there is a 1 becomes 0 and there is a 10. So 10 minus 3 is equal to 7. Okay. So there is a 7. So 7 kilometers and 741 meter. Is that your answer? After that, question number F you have to do in your homework. Today we are going to chapter number 7, measurement, in topic weight. Okay. So you better know what is weight. हम कोई भी आइटम या कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग स्केल का यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर कोई स्मॉल यूनिट है तो उसके लिए हम ग्राम यूज़ करेंगे. अगर कोई बिग यूनिट है तो उसके लिए हम यहाँ पे किलोग्राम यूज़ करेंगे. ओके. और वेट को मेज़र करने के लिए हम वेट मशीन का यूज़ करते हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट वेट. ओके. सो वी यूज़ अ वेटिंग स्केल टू मेज़र वेट. ओके. हम यहाँ पे मेज़र करने के लिए वेटिंग मशीन का यूज़ करते हैं. ये हमारा वेटिंग मशीन है. ओके. और आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे तो यहाँ पे आपको 1 kg तक का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा. सो 0 से लेके आप 1000 ग्राम तक मेज़र कर सकते हो. यहाँ पे 0 से लेके 1000 ग्राम. ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 20 पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800, 900 एंड 1000. ओके, और इन सभी के सेंटर में एक पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे 100 एंड 200 के सेंटर में एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट है उसका हाफ. इट मीन्स 150. देन आफ्टर यहाँ पे 250, 350, 450, 550. इसी तरह से सभी के पार्ट्स किए गए हैं, और ये टोटल कितने पार्ट्स हैं? 20 पार्ट्स. ओके, इट मीन्स जो 1 पार्ट है वो आपका 50 ग्राम है. ओके, सो आप यहाँ पे मेज़रमेंट देख सकते हो. जो यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट है, इसको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 650 ग्राम, देन आफ्टर 700, 750 grams, 800, 850 grams, 900 grams, 950 grams, and then after there is a 1000. ओके, सो इसी तरह से इस वेट मशीन के अंदर हम 1000 ग्राम तक मेजरमेंट कर सकते हैं. गॉट इट? ओके, देन आफ्टर ग्राम इज़ अ स्मॉलर यूनिट यूज टू मेजर वेट. जो ग्राम होता है वो यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स के लिए यूज़ होता है. एंड द वेट ऑफ द पोटैटोज इज़ 850 ग्राम्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एरो है, जो वेट मशीन के अंदर एरो होता है, जो हमें वेट बताता है कि ये कितना वेट है. तो यहाँ पे हमारा जो एरो है वो 800 एंड 900 के सेंटर में है. इट मीन्स देयर इज़ अ 850 grams. गॉट इट? सो ये हमारा है वेट, जिसके अंदर हम बेसिकली सारा वेट कर सकते हैं. एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ये हमारा 1 kg का वेट मशीन है. ओके, और हमारा पोटैटो का वेट कितना है? 850 grams. ओके, ओके, आफ्टर दैट there is the exercise number 7.4. okay, so let's start exercise number 7.4. so question number 1, circle the measurement unit that is one more suitable to represent the weight of each item. यहाँ पे जो भी हमें आइटम्स दी गई है उसके सूटेबल हमें यहाँ पे मेजरमेंट्स मेज़र करने हैं. मीन्स हमें यहाँ पे राउंड करना है. जो भी उसका सूटेबल मेजरमेंट होगा वहाँ पे हमें राउंड करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ लॉक. तो यहाँ पे एक लॉक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि लॉक का वेट अप्रॉक्सीमेट 100 ग्राम्स के नियर बाय होगा या 500 के नियर बाय. 500 ग्राम्स मीन्स हाफ kg. ओके, बट हाफ kg का तो कोई लॉक हो नहीं सकता. ओके, सो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 100 ग्राम चूज़ कर सकते हैं. सो हमारा आंसर होगा 100 ग्राम्स. ओके, आफ्टर दैट बैग. ओके, सो जो हमारा बैग होता है, आप लोग भी बैग यूज़ करते होंगे, तो वो बैग का वेट हमें 450 ग्राम्स होना चाहिए या 4 kg मीन्स 4 किलोग्राम्स. ओके, सो जो बैग होता है उसका वेट अप्रोक्स ग्राम के नियर बाय होता है, नॉट इन kg. kg तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 5 kg का सिर्फ बैग होगा तो उसके अंदर जो हम वेट भरेंगे बुक्स, ओके, सो ये वेट और भी ज़्यादा हो जाएगा. तो 450 ग्राम्स जो बैग का वेट होता है वो अप्रॉक्स 450 ग्राम्स होता है. सो यहाँ पे हम सर्कल कर लेते हैं. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे एक बॉय है. ओके, सो बॉय का वेट अप्रोक्स कितना होगा? तो ये स्कूल बॉय है, इसने यहाँ पे यूनिफॉर्म पहना हुआ है. सो 20 kg होगा या 10 kg होगा. ओके, सो बॉय का जो वेट होगा वो अप्रोक्स 20 kg होगा. 10 kg तो बहुत कम हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे 20 kg. ओके, लॉक का 100 ग्राम्स, बैग का 450 ग्राम्स एंड बॉय का यहाँ पे 20 kg, 20 kilograms. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच आइटम. ओके, सो यहाँ पे वेट मशीन दिया हुआ है एंड उसके ऊपर वेट रखा हुआ है. कहीं पे एप्पल है. ओके,
सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ए. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो एरो है वो हमें 400 एंड 500 के सेंटर में दिखा रहा है. इट मीन्स 450 ग्राम्स. ओके, सेंटर में होगा, इसका मतलब है कि वो इन दोनों के सेंटर में होगा. ओके, सो यहाँ पे 450 ग्राम्स. तो यहाँ पे जो एप्पल्स है उसका वेट यहाँ पे 450 ग्राम्स है. ओके, सो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 450 ग्राम्स. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर बी. सो यहाँ पे पम्पकिन है. सो उसका वेट यहाँ पे कितना है. ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे वेट मशीन के अंदर. सो यहाँ पे 900 एंड 1000 ग्राम्स के सेंटर में है. इट मीन्स 950 ग्राम्स. ओके, सो हमारा यहाँ पे वेट होगा 950 ग्राम्स. ओके, आफ्टर दैट देयर इज़ अनदर क्वेश्चन सी. ओके, सो यहाँ पे एक पैकेट ऑफ बटर है, तो उसका वेट यहाँ पे हमें मेज़र करना है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 ग्राम्स पे हमारा मेज़रमेंट दिखा रहा है. हमारा 100 ग्राम्स पे मेज़रमेंट दिखा रहा है, तो हमारा आंसर होगा 100 ग्राम्स. हमारा आंसर होगा 100 ग्राम्स. ओके, सो हमारा जो मेज़रमेंट है वो सभी का यहाँ पे आ चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल यहाँ पे 450 ग्राम्स. देन आफ्टर पम्पकिन जो है वो यहाँ पे 950 ग्राम्स है. एंड हमारा जो बटर पैकेट है उसका यहाँ पे वेट 100 ग्राम्स है. ओके, सो यहाँ पे हमें तीनों आंसर्स मिल चुके हैं. ये आंसर हमने वेट मशीन के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं. हमारे वेट मशीन के सेंटर में जो हमारा पॉइंट होता है वो हमें यहाँ पे मेज़र करके दिखा देता है कि हमारा वेट कितना है. गॉट इट. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो एनसर्कल द हैवियर पेन. हमें यहाँ पे जो हैवियर पेन है मीन्स जिस तरफ हैवी है हमें उस पर सर्कल ड्रॉ करना है. ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में. सो यहाँ पे एक तरफ है 3 kg और इस तरफ है 2 kg एंड 500 ग्राम्स. ओके, सो कौन सा वेट ज़्यादा है. ऑब्वियसली देर इज़ अ 3 kg, 3 किलोग्राम्स. सो यहाँ पे 3 kg हैवियर है, तो हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं. ओके, सो सेम एज अ क्वेश्चन नंबर बी. यहाँ पे भी एक तरफ है 2 kg 500 ग्राम्स और एक तरफ है 3 kg. इट मीन्स 3 kg जो है वो हैवियर है. ओके, सो यहाँ पे भी हम सर्कल कर लेते हैं. और जो हमारा पॉइंटर होता है वो जिस तरफ हैवियर होता है उस तरफ वो मूव करता है. ओके, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 kg की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे भी हमारा 3 kg की तरफ मूव कर रहा है. ओके, जो भी हैवियर होगा उसी तरफ वो मूव करेगा. ओके, आफ्टर दैट मैथ्स फन. ओके, सो ये जो मैथ्स फन है वो आपको आपके होमवर्क में करना है. ओके, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको इसमें क्या करना है. ओके, हाउ हैवी इज़ योर स्कूल बैग. ओके, हाउ हैवी इज़ योर स्कूल बैग. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ वन. यूज़ अ वेटिंग स्केल टू फाइंड द वेट ऑफ योर एम्प्टी स्कूल बैग. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपके बैग को एम्प्टी कर देना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखना है और आपको उसका वेट करना है. ओके, कि आपके जो स्कूल का बैग है एम्प्टी, ओके, उसका वेट कितना है. ओके, देन आफ्टर सेकेंड वन इज़ measure the weight of the each item as listed, then record each measurement in the table. ओके, सो यहाँ पे जो भी हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है उसका आपको वेट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स. ओके, सो यहाँ पे इन सभी का आपको वेट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है इन ग्राम्स. ओके,
अगर 1 kg है तो 1000 ग्राम, अगर हाफ kg है तो 500 ग्राम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. आफ्टर दैट कीप ऑल द 4 आइटम्स इन द स्कूल बैग. नाउ वेट द बैग विथ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन इट. अब आपको वेट करने के बाद आपको सारी आइटम्स बैग के अंदर पैक करनी है एंड आफ्टर दैट आपको उसका वेट करना है. ओके. राइट द वेट ऑफ योर बैग इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. आपको आपके स्कूल का जो टोटल वेट है वो आपको किलोग्राम्स एंड ग्राम्स बोथ दोनों में आपको करना है. फॉर एग्जांपल अगर 5 kg एंड 300 ग्राम्स है तो आप इस तरह से लिख सकते हो. अदरवाइज जो भी हो आपके बैग का वेट वो आपको मेज़र करना है इन योर टेक्स्ट बुक मैथ्स फन. ओके. सो आफ्टर दैट देर इज़ अ कन्वर्जेशन ऑफ वेट. ओके. इसके पहले हमने जो कन्वर्जेशंस किए थे उसमें सेंटीमीटर टू मीटर, देन आफ्टर मीटर टू सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स टू मीटर एंड मीटर्स टू किलोमीटर एक्सेट्रा. सो यहाँ पे हमें किलोग्राम्स एंड ग्राम्स इनटू ग्राम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे किलोग्राम्स एंड ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. ओके. So there is a example number 1. Venu buy 2 kg and 250 grams mango. वेनु ने यहाँ पे 2 kg मीन्स 2 kilograms and 250 grams mangoes यहाँ पे बाय किए हैं. What is the weight of mangoes in grams? तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके. सो कन्वर्ट किस तरह से हम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स. सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके. ये आपको मैंने पहले भी बताया था. ओके. सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके. सो यहाँ पे 2 kg है, इट मीन्स 2000 ग्राम्स. ओके. 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. सो हमने kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे. सो ये जो 2 kg है वो हो गए 2000 ग्राम्स और ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में दिया हुआ है तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. सो 2000 ग्राम्स एंड 250 ग्राम्स. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है. ओके. लेट्स सी. सो 2 kg एंड 250 ग्राम्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 kg का कन्वर्जेशन कर लेते हैं. सो 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम. ओके. नाउ 250 ग्राम एज इट इज़, बिकॉज हमें उससे कन्वर्ट नहीं करना है. ओके. नाउ वी हैव टू ऐड बोथ. हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा वेट इन ग्राम्स. ओके. सो 2 kg एंड 250 grams is equal to 2000 gram plus 250 grams is equal to 2250 grams. So Venu buy 2250 grams of mangoes. Okay. After that grams into kilograms and grams. जो ग्राम्स में है उसे हमें किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. ओके. सो हाउ टू कन्वर्ट, लेट्स सी. सो देर इज एग्जाम्पल नंबर 2. देर इज अ 3750 ग्राम्स इंटू kg एंड ग्राम्स. ओके. 3750 ग्राम्स हमें उसे किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो देर इज़ अ 3750 ग्राम्स. सो 3000 अगर हम अलग से कर लेते हैं तो उसे हम 3 kg कह सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3000 ग्राम इज इक्वल टू 3 kg. ओके. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg. सो 3000 ग्राम इज इक्वल टू 3 kg. ओके. सो देर इज़ अ 3 kg. आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है यहाँ पे 750 ग्राम्स. तो उसे हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ हमें ओनली ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है. ओके.
सो हमें किलोग्राम्स में तो मिल गया जो ग्राम में था। अभी जो ग्राम में है उसे हम एज इट इज़ रखेंगे बिकॉज हमें दोनों में चाहिए, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स बोथ। ओके, सो 3750 grams is equal to 3 kg plus 750 grams। सो हमारा आंसर होगा 3 kg एंड 750 grams। गॉट इट। सो ये था हमारा कन्वर्जेशन। इसी तरह से हम कोई भी कन्वर्जेशन को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम्स को ग्राम्स में, ग्राम्स को किलोग्राम्स में, अदरवाइज बोथ ग्राम्स इंटू किलोग्राम्स एंड किलोग्राम्स इंटू ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। ओके, सो इसी तरह से हम कन्वर्जेशंस कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम, 3 kg इज इक्वल टू 3000 grams। ओके, सो समथिंग इज देयर, माइंड इट। सो 10 gm, तो ये हम इस तरह से नहीं लिख सकते। 10 ग्राम इस तरह से कभी भी नहीं होता। देयर इज़ अ 10 g मतलब 10 ग्राम्स। देन आफ्टर 5 kg होता है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 kgs, इस तरह से हम नहीं लिख सकते। गॉट इट। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, gm या फिर kgs इस तरह से नहीं लिखना है। ग्राम्स को ओनली g से हम दिखाएंगे एंड kg को हम मतलब किलोग्राम्स को kg से दिखाएंगे। ओके, देन आफ्टर अगर आप इसका उल्टा करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो बोथ आर सेम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg एंड 3000 ग्राम इज इक्वल टू 3 kg। एज इट इज़ आगे बढ़ता जाएगा। ओके ओके, सो देर इज़ अ एक्सरसाइज नंबर 7.5। so there is a fill in the blanks and we have to fill the blanks. Before we start the blanks we have to see the conversations we before done. Okay, so in last videos we have to already done about the kilograms and grams into grams and grams into kilograms and grams. So how to convert you better know. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 kg एंड 250 ग्राम्स मैंगो थे, तो हमें यहाँ पे ग्राम्स में कन्वर्ट करना था। सो यहाँ पे 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। यहाँ पे आप टेबल में भी देख सकते हो 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 kg ग्राम्स को लिख लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे 250 ग्राम्स है, सो हमें वो एज इट इज़ रखना है बिकॉज हमें ओनली ग्राम्स में आंसर्स चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम्स, 2000 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स इज इक्वल टू 2250 ग्राम्स। तो हमें कुछ इस तरह से आंसर्स मिले थे। ओके, सो नाउ we are going to exercise number 7.5. okay, so first of all there is a question number A. okay, so there is a 5 kg and 175 grams. okay, 5 kg and 175 grams. so first of all हम यहाँ पे 5 kg को convert करेंगे। ओके, और हमें आंसर यहाँ पे ग्राम्स में चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट 5 kg इंटू ग्राम्स। सो यू ऑलरेडी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम, 3 kg इज इक्वल टू 3000 ग्राम। सो आगे की तरफ क्या होगा, 3 kg इज इक्वल टू 3000 ग्राम। सो 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम, 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। एज इट इज़ आगे की तरफ भी 6 kg होगा तो 6000 ग्राम्स। सो यहाँ पे हमारे पास 5 kg है, इट मीन्स 5000 ग्राम। ओके, सो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 5000 ग्राम। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे 175 ग्राम्स है,
ओके, सो हमें यहाँ पे आंसर्स ग्राम के अंदर लेना है। सो हम यहाँ पे 175 ग्राम्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं। सो यहाँ पे 175 grams. Now we have to add both. Okay, so first of all there is a 5000 and there is a 175. Okay, so we have to add both. So there is the answer 5175 grams. ओके, सो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5175 grams. Okay, so there is the answer. Okay, so there is the answer 5175 grams. Okay, okay. After that, question number B. Okay, so there is a 7 kg and 450 grams. So ये आपको होमवर्क में करना है, एक की तरह सेम ही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर C, 4520 ग्राम्स। हमें यहाँ पे kg एंड ग्राम्स मतलब किलोग्राम एंड ग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है। ओके, सो देर इज़ अ 4520 ग्राम्स। सो 4000 को हम अलग से लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ 4000 ग्राम इज इक्वल टू 4 kg। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 4000 ग्राम को अलग से लिख देते हैं। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जो रिमेनिंग ग्राम्स है वो यहाँ पे 520 ग्राम्स है। सो यहाँ पे 520 ग्राम्स। ओके, 4000 को हमने अलग से लिख दिया और जो हमारा रिमेनिंग था वो यहाँ पे 5020 ग्राम्स। सो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे 4000 ग्राम इज इक्वल टू यहाँ पे 4 kg। सो यहाँ पे 4 kg एंड यहाँ पे हमारा जो ग्राम्स है 520 ग्राम्स। सो यहाँ पे 520 ग्राम्स। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 kg एंड 520 ग्राम्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर है 4 kg एंड 520 ग्राम्स। ओके, ओके, सो सेम एज अ क्वेश्चन नंबर डी है 9312 ग्राम्स। तो आपको इसे भी कन्वर्ट इसी तरह से करना है इन योर होमवर्क। ओके।